The day you stop learning is the day you stop living. A very good afternoon to respected members and all the participants who have joined us live. This is Priya Bakshi on behalf of Sikasa Bilaspur branch of CIRC of ICA, and I welcome all of you to second day of our two-day live webinar on MS Excel. To begin with, I would like to invite Mr. Manmohan Ramchandani, Vice Chairman, Sikasa Bilaspur, to speak a few words. Manmohan. A very good evening to all of you. First of all, I welcome CA Kapil sir, and I would like to thank you, sir, for such your valuable time. And I would also like to welcome Saurabh Sen and Devashish Goswami, who are from Bhilai and Raipur, who have joined us. And thank you so much for being there and helping us in this initiative. Yesterday, we have achieved a target which was completely unbelievable, but I hope we'll be achieving more target tomorrow. And moreover, I'll want to inform the students that if you are not comfortable, if you have any doubt or if you want more information about the Microsoft Excel, then you can please suggest us so that we can ask sir and we can arrange more classes for you. And it's for the betterment of you. And I also want to request the students that if you have any doubt on a particular topic, then please do type it on the comment box so that the sir can clear that time only. Otherwise, it will be left out with us. Okay, so thank you, everyone. Thank you, everyone. So, Priya, over to you. Thank you, Manmohan. I would like to remind you all that this webinar is hosted by Bilaspur branch of CIRC of ICAI along with Raipur and Bhilai branches of CIRC of ICAI. Moving forward, I would like to invite Mr. Saurabh Sen, Treasurer, Raipur branch, to speak a few words. Saurabh. Thank you, Priya Bakshi. If I'm audible. Yes. Hello. Yeah, you are. Yes. Thank you, Priya. It's been great pleasure to be over here with all of you. I have seen all the seminar of yesterday. Everything the editor spoke about MS Excel, and I have talked with your secretary as well. The views there itself was a tremendous, and I have heard a lot of about Mr. Kapil sir, and I feel he takes your ITT and OTC classes as well. So he has such a great experience over this. I, Saurabh Sen, on behalf of Raipur branch, thank you, Bilaspur branch, for collaborating us and Bhilai branch. And it's been great pleasure to be over here on this platform. It's my gratitude that I extend to all of you for inviting us and to tell us that how much MS Excel is useful during this lockdown time. Everyone can get the benefit of this, and in the articleship usually have to use Excel, and it's just the core part which we need to know. And Kapil sir was tremendously well yesterday, and I feel he will be today also. And thank you from Raipur branch. Thank you so much. Thank you, Saurabh, for such nice words. Now, I would like to invite Mr. Devashish Goswami, Secretary, Bhilai branch of CIRC of ICI. Devashish. Thank you. Thank you very much, Priyaji. I hope I am audible. And Yes. on behalf of all Sikasa Bhilai team, I, Devashish Goswami, Secretary of Sikasa, express my gratitude towards you all, and also welcome everyone who is watching this webinar. I myself watched the last session and it was tremendously helpful. I also watched the views which were around more than what I expected. It is a very successful webinar, and I hope that this will continue today also. And today's session will be more fruitful, and everyone who is participating today will be immensely satisfied with this. Thank you so much, Kapil sir, for giving us your time. And I'm on behalf of whole Sikasa team and Bhilai, thank the Bilaspur branch for organizing this. Thank you. Handing over to you, Priya. Thank you, Devashish.
Now, I would like to invite Ms. Siddhi Agrawal, Joint Secretary of Sikasa Bilaspur branch. Siddhi. Good afternoon, everyone. Myself, Siddhi Agarwal, Joint Secretary of Sikasa Bilaspur, being very lucky to attend this webinar. Here we Navi, Saurabh Sen, and Debashish. I would also like to welcome Kapil sir. Now, before starting this webinar, I would like to throw some light on the importance of all of us being here. Like during this lockdown, Sikasa Bilaspur, jointly with Sikasa Raipur and Sikasa Bhilai, has taken such a beautiful initiative to make all the students aware about the importance of MS Excel, as it is the very core, very basic thing of every CA professional, which every CA professional must know. MS Excel is very important because it has made a key role in many sectors, whether it is business sector, business activities, classworks, or even some personal data organization. It also allows us to keep all our important numbers and data at one place, whether it is our whether we are dealing with our budgets, our current expenses, our future expenses, etc. We can easily navigate, adjust, like we have all our fundamental things at one place, and it helps us to be with this. I would like to end up, and I would be glad to hear Kapil sir further. Thank you. Thank you, Siddhi. I hope by now you're all ready with spreadsheets open in your laptops. For the new participants, I would like to introduce you to our honorable speaker, CA Kapil Sajdev sir. Sir became a CA in the year 2011. He had been a trainer of Microsoft Excel in Narolac Teams Limited for 5 years. He is now a practicing chartered accountant in Bilaspur and still manages to take his time out to teach MS Excel in ITT and Advanced ITT branches batches of ICAI. Now, I would like to invite Sir to kindly share bits of his tremendous knowledge on MS Excel with us. Sir, please. Thank you, Priya. Thank you, Manmohan. Thank you, Saurabh, Devashish, Siddhi, everyone. Thank you, and thank you to Bilaspur Sikasa branch, Bhilai Sikasa branch, and Raipur Sikasa branch. So, आज का सेशन शुरू करते हैं. सबसे पहले एक मेरे को बहुत सारे प्राइवेट मैसेज आए हैं कि कल की जो शीट थी वो कहाँ अवेलेबल होगी, जो अपन ने बनाई थी ये शीट जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे. तो ये शीट जो यूट्यूब का वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आज की भी शीट मैं वहीं पे डालूंगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से सभी से, यदि कोई डाउट आता है तो आप उसको भेजिए इमीडिएट. अलौकिक आप उसे नोट डाउन करिए, जैसे ही वो टॉपिक ख़त्म होता है पर्टिकुलर टॉपिक, मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से डाउट है, आप मुझे उसके बारे में डाउट बताना, मैं एक एक करके उसको सॉल्व करूँगा, ताकि क्या हो डाउट लास्ट के लिए पेंडिंग ना रहे. Immediate after topic we can close that down. Yes, and we can start a fresh topic. Okay, so let's start for the today's session. Yes, sir. कल हमने डेट फंक्शन देखा था, एक बार जस्ट छोटा सा रिवाइज कर देते हैं. कल डेट फंक्शन देखा था हमने, उसमें 8 फॉर्मूले देखे थे: डे, मंथ, ईयर, डेट, ई डेट, ईओ मंथ, नेटवर्किंग डेज, इंटरनेशनल. ये 8 फॉर्मूले देखे थे. एक बार जस्ट छोटा सा रिमाइंडर मैं आप लोगों को दे देता हूँ कल क्या क्या मैंने किया था. तो डे फंक्शन से क्या होता है, किसी भी एक डेट से आप डे को अलग निकाल सकते हैं. मंथ फंक्शन से क्या होता है, यदि कोई आपके पास डेट लिखी हुई है, इसका पर्टिकुलर यदि मंथ आपको निकालना है तो आप मंथ फंक्शन से मंथ निकाल सकते हैं. सेमली ईयर फंक्शन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डेट से उसका यदि ईयर आपको निकालना है तो आप ईयर निकाल सकते हैं. देन डेट फंक्शन क्या करता है, यदि आपको कंबाइंड डेट करना है, आपके पास डे, मंथ, ईयर तीनों अलग अलग यदि अवेलेबल हैं और आपको तीनों को क्लब करके एक नई डेट बनानी है, तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज़ आता है, डेट फंक्शन. उसमें आपको ईयर डिफाइन करना है, मंथ डिफाइन करना है, डे डिफाइन करना है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेट फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है. उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन है ई डेट. ई डेट आपको बताता है कि नेक्स्ट आपको कितना
मंथ का गैप चाहिए, सपोज मुझे 3 महीना यहाँ पे गैप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ई डेट लगा के 3 मंथ्स किया, तो ये दिसंबर से लेके मार्च तक आता है, 3 महीने का यहाँ पे गैप आता है। ईओ मंथ बताता है आपको एंड ऑफ द मंथ, उस मंथ का एंड ऑफ कोई पर्टिकुलर डेट है, उसका एंड ऑफ मंथ डेट क्या है, तो उससे आपको एंड ऑफ मंथ पता चलता है। नेट वर्किंग डेज, ये आपको बताता है कि पूरे पर्टिकुलर 2 डेट के बीच में कंसिडरिंग योर हॉलीडे लिस्ट कितने वर्किंग डे हैं, एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। ये नेट वर्किंग डेज जो है इंटरनेशनल 5 डे वीक के हिसाब से बड़े हुए हैं, शनिवार रविवार छुट्टी करके और आपका हॉलीडेज लिस्ट लेके। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना रहता है स्टार्ट डेट, एंड डेट, देन आपका हॉलीडे लिस्ट आप डिफाइन करेंगे तो आपको नेट वर्किंग डेज मिल जाएगा। देन आफ्टर आता है नेट वर्क डेट इंटरनेशनल। इसमें जो नेट वर्क डेज जो फंक्शन है उसमें आप 5 डे वीक्स बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे है, बट फॉर द इंडियन फॉर द इंडिया फॉर कपिल सर, हाँ सर स्क्रीन में एक्सेल नहीं दिख रहा सर, आप स्क्रीन में एक्सेल चालू कर दीजिए। स्क्रीन में एक्सेल नहीं दिख रहा है। अब क्लियर है? नहीं सर अभी अब दिख रहा है? अब दिख गया? हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है, तो नेट वर्क डेट से क्या होता है आपका स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडे के लिस्ट पे आपका नेट वर्किंग डेज बताता है। बट इसका लिमिटेशन क्या है, ये 5 डे वीक के हिसाब से बना हुआ है, शनिवार रविवार सैटरडे संडे हॉलीडे के हिसाब से बना हुआ है। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या फिर दूसरी कोई कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको बनाना है तो आपको यूज़ करना है नेट वर्क डेज इंटरनेशनल। वो फॉर्मूला में आपको क्या बताता है, आपका स्टार्ट डेट डिफाइन करना है, एंड डेट डिफाइन करना है, देन आपको वीकेंड डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं फिर से लगाता हूँ एक बार जस्ट नेट वर्क डे स्टार्ट। मेरा स्टार्ट डेट कौन सा है 1 जनवरी 20, एंड डेट कौन सा है 31 जनवरी 20। देन वीकेंड्स, यदि मेरा इंडिया के छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें तो ओनली संडे हॉलीडे। देन मैं यहाँ पे अपना प्री डिफाइंड हॉलीडे लिस्ट को इंसर्ट करता हूँ और ये क्लोज करता हूँ। तो मेरा नेट वर्किंग डेज कितना हो गया 312 दिन हो गया इस साल में, कंसिडरिंग संडे हॉलीडे एंड दीज नेशनल हॉलीडेज। करेक्ट है? तो ये 8 फंक्शन जो हैं ये पर्टेन टू डेट फंक्शन है। इसमें आप डेट्स के अलग अलग फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। देन आते हैं अपन टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में अपन ने लेंथ देखा था। लेंथ से क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट का आप लेंथ निकाल सकते हैं कि वो कितना डिजिट का है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया था जीएसटी नंबर 15 डिजिट होना चाहिए, पेन 10 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ से आप निकाल के उसका डिजिट चेक कर सकते हैं। देन लिया था लेफ़्ट, किसी टेक्स्ट का लेफ्ट हैंड निकालना है तो लेफ्ट, राइट निकालना है तो राइट। मिड, मिड से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के मिडिल में से कुछ निकालना है। फॉर एग्जांपल जीएसटी नंबर है, उसमें से आपको पेन नंबर निकालना है, तो पेन नंबर कौन से कॉलम कौन से डिजिट से स्टार्ट होता है, 3rd डिजिट से स्टार्ट होता है। तो 3rd से लेके 10 डिजिट तक आपको निकालना है, तो वहाँ से आपका पेन नंबर निकल जाएगा। करेक्ट? ये पेन नंबर निकल जाएगा यहाँ पे। देन ये लोअर अपर, उसके बाद हमने वीलुकअप देखा था कल, वीलुकअप इंडेक्स मैच के साथ देखा था। डेटा वैलिडेशन देखा था। आज हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शन। ये हमने कल कुछ फंक्शन देखे थे, आज हम क्या देखना शुरू करेंगे, लॉजिकल फंक्शन। तो एक्सेल में कितने लॉजिकल फंक्शन है, मेन जो लॉजिकल फंक्शन है एक्सेल के, मैं आपको पहले बताता हूँ क्या होता है। पहले लॉजिकल फंक्शन है इफ़, एंड, और। ये 3 लॉजिकल फंक्शन एक्सेल में अवेलेबल है। इसका आप कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअली यूज़ करके आप लॉजिकल रिजल्ट निकाल सकते हैं। इफ़ से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई कंडीशन देनी है और वो यदि कंडीशन फुलफिल होती है तो वो हमने को रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो एकदम बेसिक प्लेन इफ़ यदि हमको लगाना है तो दिस इक्वल टू दिस करूँगा तो ये ट्रू बता रहा है, मतलब ये दोनों, तो ये प्लेन कंडीशन है। इसको यदि मैं ट्रू करता हूँ तो ये फॉल्स है। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इफ। यहाँ पे यदि मैं दिस ग्रेटर देन करता हूँ तो ये फॉल्स होता है, इसको यदि मैं 4 करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। तो सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ है, जिसमें कंडीशन आप डिफाइन करते हैं और आपका उसका जो रिजल्ट मिलता है आइदर ट्रू मिलता है और आइदर फॉल्स मिलता है। ठीक है? और इसका एक ये दिस इज बेसिक से इफ़। अब एक अपन थोड़ा एडवांस लेवल का इफ़ में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं, सब सीए स्टूडेंट्स हैं, तो सबको पता है कि सीपीडी वगैरह सब क्लियर करके आर्टिकलशिप कर रहे हैं। तो उसमें 4 पेपर होते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और यहाँ पे टोटल मार्क्स नाउ यहाँ पे मैं इंडिविजुअल मार्क्स असाइन कर देता हूँ और यहाँ मैं टोटल लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं रिजल्ट देता हूँ। अभी क्राइटेरिया क्या है पासिंग मार्क्स का यहाँ पे कि टोटल 200% से 200 से सपोज ज़्यादा होना है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। एक बेसिक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़। अब इफ़ का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले इफ़ लगाने के लिए ना उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसका लॉजिकल पहला कंपोनेंट होता है लॉजिकल कंडीशन, दूसरा कंपोनेंट होता है व्हाट इफ़ ट्रू एंड थर्ड कंपोनेंट होता है व्हाट इफ़ फॉल्स। तो ये 3 कंपोनेंट से इफ़ का फंक्शन डिफाइन हुआ है। इसमें यदि एक भी कंपोनेंट यदि मिस होगा इफ़ में तो आपका फॉर्मूला रिजल्ट नहीं देगा, एरर देगा। और ईच कंपोनेंट के बीच बाद में कॉमा लगता है। तो सबसे पहले इफ़ लगाना है, देन उस आफ्टर आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, देन आपको लॉजिकल कंडीशन डिफाइन करना है। तो अपने इस एग्जांपल में लॉजिकल कंडीशन क्या हो रहा है कि आपका यदि टोटल मार्क्स 200 एंड अबोव है तो दैट विल बी पास, अदरवाइज 200 के बिलो है तो फेल होगा। तो ठीक है, तो यहाँ 3 कंपोनेंट क्या हो गया। सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो गया, टोटल मार्क्स आपका मार्क्स जो है 200 के अबोव होना चाहिए। सेकेंड उसका यदि ट्रू होता है तो पास, फेल होता है तो फेल। और एक एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, कल मैंने एक थंब रूल जो बताया था कि कभी भी कोई आपको रिजल्ट टेक्स्ट या स्ट्रिंग में देना रहता है तो उसको किस में लिखना रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना रहता है। तो अपन यहाँ पे लेस्ट एग्जांपल, तो सबसे पहले मैं इफ़ लिखा। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे मेरे को डिनोट कर रहा है कि लॉजिकल टेस्ट है वैल्यू यहाँ पे डिनोट। तो इसको पढ़ते पढ़ते मेरे को करना है। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ये मेरा लॉजिकल कंडीशन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बिकम पास, अदरवाइज फेल। देन मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये पास होता है। सपोज मैं इसको 40 कर देता हूँ तो ये फेल हो जाता है। करेक्ट है। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ इफ है। फर्स्ट अपन ने देखा एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ इफ, दिस वन इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ इफ। यहाँ पे यदि मैं इसको फिर से 60 करता हूँ तो ये पास हो जाता है। ये अपना बेसिक कंडीशन क्या था, इफ लॉजिकल टेस्ट इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 देन व्हाट टू डू, देन कॉमा। ये कॉमा नहीं बोलना है यहाँ पे। यदि कॉमा बहुत जब बड़ा कंडीशन होता है, मेजर लोग मैंने देखा है क्या गलती होती है कि कॉमा नहीं लगाते। कॉमा कहाँ लगाना है वो गलती करते हैं, जिसके कारण फॉर्मूला एरर करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए ईच कंपोनेंट के बाद आपको कॉमा रखना है। और नीचे यहाँ पे आपको ये यहाँ पे डिफाइन भी हो रहा है कि कॉमा आएगा, कॉमा कहाँ कहाँ पे आएगा, कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट आएगा। तो उसको देखते देखते आप करेंगे तो आपसे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी एकदम कम हो जाएगी। तो दिस वन इज़ अ सेकेंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इफ़, कि जिसमें लॉजिकल टेस्ट लगाया, व्हाट इफ़ ट्रू, व्हाट इफ़ फॉल्स, 3 कंपोनेंट तीनों यहाँ पे। देन इसके बाद इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूँ मैं कि जैसे सबको पता है सीए एग्ज़ाम में क्या होता है कि ग्रेड आपको 200 से ज़्यादा चाहिए और से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मेरी क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको यूज़ करना, साथ में क्या यूज़ होगा, एंड यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, इफ़ के साथ में क्या होगा, एंड। एंड क्या करता है, जब आपकी मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल कंडीशन, सभी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी तो वो ट्रू का रिजल्ट देगा। और क्या होता है, आइदर यदि आपकी 2 कंडीशन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए तो भी वो ट्रू में चले जाएगा,
एंड में सभी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे इस एग्जाम्पल में क्या कंडीशन होगी, ईच पेपर 1 में भी 40 से ज़्यादा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, पेपर 1 ग्रेटर देन 40, पेपर 2 ग्रेटर देन 40, पेपर 3 ग्रेटर देन 40, पेपर 4 ग्रेटर देन 40 एंड टोटल मार्क्स विल बी द ग्रेटर देन 200, देन एंड ओनली इट विल बी बिकम पास। सो यहाँ पे 5 कंडीशन बनी, पांचों जब सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, यहाँ पे पांचों जब सेटिस्फाई होगी तब वो पास होगा। तो यहाँ पे हम इफ़ के साथ एंड लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं लिखा इफ़, देन ये मेरा पहला कंपोनेंट आता है लॉजिकल टेस्ट। तो सिंपल जब मैं इफ़ लगाता हूँ तो मुझे क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट देना है, बट यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी है, विथ एंड लगानी है, एंड क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एंड। देन यहाँ पे पूछ रहा है लॉजिकल कंडीशन 1, तो लॉजिकल कंडीशन मेरा 1 क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देन कॉमा पूछ रहे, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 क्या है मेरा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये चारों पेपर में मेरा 40 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। और लास्ट कंडीशन मेरा क्या है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो ये मेरा यहाँ पे लॉजिकल कंपोनेंट खत्म हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे लास्ट में डॉट डॉट के बाद में यहाँ पे ब्रैकेट है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा। उसके बाद मेरा सेकंड कंपोनेंट क्या होता है इफ़ का, मेरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, मल्टीपल कंडीशन मैंने लगा दी यहाँ पे। अब मेरा दूसरा क्या कंपोनेंट है, वैल्यू व्हाट इफ ट्रू। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या रिजल्ट देना है, तो क्या रिजल्ट देना है मेरे को यहाँ पे। तो सबसे पहले कंपोनेंट के बाद कॉमा, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा पास, करेक्ट। देन फिर कॉमा, थर्ड कंपोनेंट मेरा व्हाट इफ कंडीशन फॉल्स, यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करना है, तो वहाँ पे मुझे देना है फेल। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फेल। अभी मेरा तीनों कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। लास्ट में देख रहे हैं आप ब्रैकेट लगाने का बोल रहे हैं, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये यहाँ पे पास आ रहा है। अब आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा है, इंडिविजुअल टोटल भी 200 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा, करेक्ट है। अब मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 39 और इसको करता हूँ 61। अभी देखिए इसका एग्रीगेट तो इसका एग्रीगेट यहाँ पे तो सिंपल कंडीशन है, 200 से ज़्यादा होगा तो पास और फेल देगा। यहाँ पे क्या कंडीशन है, ईच सब्जेक्ट में उसको 40 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और ओवरऑल मार्क्स भी क्या होना चाहिए, 200 से ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेपर 1 में ही उसका 39 है, एग्रीगेट तो उसका 200 हो रहा है, बट एक पेपर में फेल है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे फेल। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 40 करता हूँ और इसको 55 करता है। यहाँ पे देखिए सभी पेपर में वो 47 हो, बट एग्रीगेट में क्या हो गया, उसका 200 नहीं हुआ, तो फिर देन अगेन वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ इफ है, जिसमें इफ एंड दोनों हम साथ में लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, और जब सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन ओनली वो हमारा रिजल्ट देता है। क्लियर है सबको ये जी, इफ और एंड के साथ में। सर एक जन का डाउट है कि एग्जाम्शन का क्या होगा। करेक्ट है, एग्जाम्शन का क्या होगा उसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उसमें इफ एंड और को भी यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है सभी पार्टिसिपेंट। यदि कोई डाउट है तो लाइव कमेंट में डाल सकते हैं, यदि कुछ कुछ कमेंट आई है मेरे पास। सर अभी नहीं है सर, अभी सब क्लियर है। करेक्ट करेक्ट ओके। हाँ, एक एग्जाम्शन का एक रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्शन का क्या होगा। तो एग्जाम्शन के लिए अब एक और इफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्शन में क्या क्राइटेरिया होगा, अब अपने को सबसे पहले इफ़ लगाने से पहले क्या सोचना है ना, इफ़ लॉजिकल कंडीशन है। और एक थंब रूल है एक्सेल का, वो थंब रूल क्या बोलता है कि एक्सेल को कुछ नहीं आता, उसको दिमाग नहीं, आप उसको जो डिफाइन करेंगे ना वही आपको रिजल्ट देगा। तो आपको सबसे पहले कंडीशन को मैं एडवाइस करता हूँ कि पेपर में आप नोट डाउन करें, उसका कंडीशन को प्रॉपरली डिफाइन करें और उसका रिजल्ट बताएं कि क्या ट्रू होगा, तब आप उसको डायरेक्ट आप लगाने जाएंगे ना तो कई बार आपका फॉर्मूला में प्रॉब्लम आती है। तो अब एग्जाम्शन वाला डाउट है, एग्जाम्शन में क्या होता है, तो सोचना एग्जाम्शन में लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, एग्जाम्शन कब आता है।
तो एग्जाम्पशन कब आता है? जब किसी एक इंडिविजुअल पेपर में क्या होगा, जब 60 एंड अबो आएगा तब क्या होगा, एग्जाम्पशन होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। जनरली एग्जाम्पशन कब आता है? जब फेल होते हैं। यदि आप पास हैं तो आप पास ही करेंगे। फेल जब आप होते हैं तब एक सब्जेक्ट में यदि 60 के ऊपर आता है कोई, तो फिर आप एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे मैं फिर से लगाऊंगा। तो यहाँ पे इफ़ फिर एंड, पहला कंडीशन क्या होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, लॉजिकल का स्टैंडर्ड 2, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 40, दिस greater than equal to 40 comma this greater than equal to 40. Now this greater than equal to 200. करेक्ट? ये मेरा लॉजिकल कंडीशन खत्म हो गया। यदि ये सब सेटिस्फाई होता है तो मेरा क्या होगा, वो पास हो जाएगा। करेक्ट है? अब ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो आइदर फेल होगा, आइदर किसी में क्या होगा, एग्जाम्पशन होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर इफ लगाना पड़ेगा। तो फिर इफ अब मेरे को यहाँ पे देखना है किसी एक सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा है तो वो एग्जाम्पशन होगा। तो यहाँ पे किसी एक में है, सभी कंडीशन नहीं, कोई भी एक, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, और एंड में क्या होता है, सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी यदि सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी तो आपका वो रिजल्ट दे देगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और पहला कंडीशन क्या है मेरा, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यदि ये इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो मेरे को यहाँ पे क्या देना, EX, ये मेरा एग्जाम्पशन हो गया। करेक्ट? अब ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। करेक्ट? तो ये फेल। अब मुझको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है। तो मैंने कितने इफ लगाए हैं, 2 इफ लगाए हैं, तो मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है। ये पहला इफ का ब्रैकेट बंद हुआ, ये दूसरे इफ का ब्रैकेट हुआ, ये यहाँ पे आ गया फेल। अभी किसी में एग्जाम्पशन नहीं, तो अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको 30 करता हूँ और इसको 60 करता हूँ। ये देखिए फेल है बट एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफ के साथ में एंड भी यूज हुआ एंड और भी यूज हुआ। अभी इसमें यदि आपको और इसको डिफिकल्ट करना है तो और इसमें आप लगा सकते हैं कि पेपर 1 में यदि है तो पेपर 1 एग्जाम्पशन, पेपर 2, तो आपको 4 और कंडीशन लगानी पड़ेंगे। तो जितना आपका क्राइटेरिया होगा उसके बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। क्लियर है सबको ये? यस एवरीवन क्लियर कि कैसा होगा ये? क्लियर है सर। किसका डाउट था ये? सर ये एनोनिमस का क्लियर है? तो ये आपका हो गया इफ कंडीशन। तो ये हमने 3 देखा। इफ सिंपल इफ देखा, सबसे पहला देखा सिंपल इफ, क्लियर है सर। ये सिंपल इफ में जस्ट ट्रू एंड फॉल्स देता है। यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखाया। तो ये 4 टाइप के इफ हो गए। तो एक बेसिक इफ, उसके बाद इफ एंड के साथ में, इफ और के साथ में। ये एक एग्जांपल हो गया लाइव। इफ का एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इफ का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, इनकम टैक्स का कैलकुलेटर। करेक्ट है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इफ कर रहा हूँ, कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट क्या दे रहा हूँ, रिजल्ट दे रहा हूँ कि पास और फेल। बट अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैं डायरेक्ट रिजल्ट ना देके वहाँ पे फिर से कोई कैलकुलेशन लगा दूंगा। क्या करूँगा, फिर से कोई कैलकुलेशन लगा दूंगा। तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा नेस्टेड इफ लेने के पहले ना मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। नेम मैनेजर, आप लोग सब लोग देखेंगे यहाँ डेटा है, सॉरी फार्मूलाज में यहाँ पे डिफाइन नेम करके ये टैब है। ये नेम मैनेजर क्या होता है, तो ये नेम मैनेजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
ये जो सेल है अभी ये F1, इसका नाम क्या है F1, करेक्ट है। इसका नाम क्या है F2, इसका नाम क्या है G2। तो सभी सेल्स का नाम होता है, बट मेरे को किसी सेल का नाम डिफाइन करना है अदर देन दैट F1, तो मैं उसका नाम कहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ, इस नेम मैनेजर से डिफाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे GTI करता हूँ और इसका नाम मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, GTI मैंने नाम दिखा दिया। अब मेरे को क्या होगा, हर बार मेरे को यहाँ पे G1 नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इफ़ GTI, तो GTI ऑटोमेटिक ले लेगा, तो मेरे को वो रेफरेंस देने का ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मेरे को G1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली GTI ग्रेटर देन 2,50,000 और 5 लाख बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया मैं लगा सकता हूँ। तो नेम मैनेजर से क्या होता है, आप सेल पर्टिकुलर सेल का क्या कर सकते हैं, नाम डिफाइन कर सकते हैं, और वो नाम को आप उस शीट में, उस वर्कबुक में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट है। उस शीट में, वर्कबुक में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया है GTI। अभी ये तो एक सिंगल हुआ कि सिंगल मेरा एक सेल का नाम, मेरे को मल्टीपल सेल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल हमारा कल एक सेल्स रजिस्टर बना था, ये हमारा सेल्स रजिस्टर, करेक्ट है। तो इसका सब का नाम देना है, इसका नाम ये सब क्या, इनवॉइस डेट है, ये इनवॉइस नंबर है, पार्टी, टैक्सेबल, तो मेरे को ये सब का नाम देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्या करूँगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो टॉप रो में मेरा नाम वो पूछ रहा है, सिस्टम क्या पूछ रहा है, नाम आपका कहाँ पे डिफाइन है, नाम कहाँ पे डिफाइन है, इसमें टॉप रो में नाम डिफाइन है। कहाँ पे नाम डिफाइन है, टॉप रो में। तो लेफ्ट कॉलम में तो नाम नहीं, तो टॉप रो को किया, ओके किया, तो ये सबका यहाँ पे नाम डिफाइन हो गया। अभी देखिए, अभी मेरे को टैक्सेबल का टोटल चाहिए ना, तो मैं कहीं पे भी हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ये टैक्सेबल, ये डायरेक्ट मेरे को सम ऑफ टैक्स का दे दिया। यदि मेरे को टैक्सेबल चाहिए तो मैं यहाँ टैक्सेबल भी ले सकता हूँ, सम ऑफ टैक्सेबल, तो ये डिफाइन हो गया। तो दो तरीका, इधर आप एक एक शीट में जाके एक एक सेल का नाम डिफाइन करिए। सेकंड तरीका क्या होता है, आप पूरे को सेलेक्ट करिए, उसमें नाम जहाँ पे भी डिफाइंड है आपका, उसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके एक साथ नाम डिफाइन कर सकते हैं। और इसका आप पूरे शीट में कहीं भी, सपोज मैं पर्टिकुलर इस शीट में नहीं हूँ, मैं हूँ इस शीट में, और यहाँ पे मैं लेता हूँ सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो मेरे को वहाँ का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये पास यहाँ पे ही सीधा टैक्स का टोटल आ गया। मेरे को टैक्सेबल वैल्यू चाहिए तो टैक्सेबल वैल्यू का टोटल आ गया। तो ये इसका ब्यूटी क्या है, हमको रेफरेंस याद करने का ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिफाइन कर दें और जहाँ पे भी लॉजिकली यूज़ करना है। जैसे मेरा सेकंड एग्जाम्पल है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, तो मेरे को हर बार यहाँ पे G1 नहीं देखना है, मेरे को क्या देखना है, जहाँ पे भी ग्रॉस टोटल इनकम, तो मैं इफ़ के फॉर्मूला में हमेशा लिखूँगा इफ़ ग्रॉस टोटल इनकम इज़ ग्रेटर देन दिस अमाउंट देन दिस कैलकुलेशन, करेक्ट। तो ऐसा करके आप उसका नाम नेम मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेम मैनेजर है, ये आपको बताएगा कि किस रो का क्या क्या नाम दिया, इसको आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट दिस नेम मैनेजर, जो आप नाम डिफाइन करें। फिर से अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक पे थे अपन। नेम मैनेजर क्लियर है, किसी को डाउट है नेम मैनेजर में, यदि कोई डाउट हो तो पूछ लें। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। नेम मैनेजर ओके है सबको, क्लियर? यस सर। उसके बाद अपन आते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 लाख, ये मेरा 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को क्या डिफाइन करना है, मेरा स्लैब डिफाइन करना है। तो स्लैब अभी जो अभी एसएस में 2021 के लिए क्या है, 0 to 5 लाख में जो मेरा एक बेसिक लेता हूँ मैं, रिबेट के बाद मेरा 0 है, 5 लाख अबोव से 10 लाख जो है 20% है, एंड 10 लाख अबोव क्या है, 10 लाख अबोव 30% है, करेक्ट। तो वो 50 लाख करेक्ट, हो गया। ये हाँ वो एक 0 ज़्यादा हो गया। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20, यहाँ 30। यहाँ 20 है और यहाँ पे 30 है। ये मेरा टैक्स स्लैब है। यहाँ पे
5 लाख तक का जिसका इनकम है वहाँ पे उसको क्या है, रिबेट भी है, करेक्ट है, रिबेट मिलता है 12,500 का। तो अपन पहले सबसे पहले सिंपल बनाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ लगाऊंगा। इफ़ सबसे पहला GTI इस, अब यहाँ पे 2 तरीका है, मैं आगे किससे जा सकता हूँ कि कैसा लॉजिकल कंडीशन बनेगा इसका। GTI 0 से लेके 2.5 लाख तक है तो टैक्स कितना होना चाहिए, 0। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो टैक्स कितना होना चाहिए, 5% ऑफ व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू माइनस 2.5 लाख का 5% होना चाहिए, करेक्ट है। और वहाँ पे रिबेट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए हर केस में मेरे पास 2 कंडीशन आ रहा है, इससे ज़्यादा और इससे कम। तो यहाँ पे मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, एंड यूज़ करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 250 बट लेस देन, ग्रेटर देन 5 लाख बट लेस देन 10 लाख। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हुआ, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। या फिर मैं दूसरा क्या तरीका कर सकता हूँ, मैं पीछे की तरफ से आता हूँ, मतलब इफ GTI ग्रेटर देन 10 लाख, ये मैं यहाँ पे 10 लाख ले लिया, करेक्ट। अब यहाँ पे 10 लाख से ऊपर के जितने भी पॉपुलेशन है, जितना भी नंबर हो सकता है वो इस पॉपुलेशन में आ गया। यदि 10 लाख से ज़्यादा है तो मेरा क्या होगा, और टैक्स कितना होगा, टैक्स कितना होगा मेरा, GTI माइनस 10 लाख, 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500। तो ये मेरा 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन निकल गया यहाँ पे, करेक्ट। अब मेरा सेकंड पॉपुलेशन क्या आता है, 10 लाख से 5 लाख के बीच में यदि कोई है तो मैं यहाँ पे फिर वैल्यू फॉल्स में क्या करूँगा, फॉल्स, फिर एक इफ लगाऊंगा यहाँ पे, इफ GTI ग्रेटर देन क्या, 5 लाख, करेक्ट। GTI माइनस 5 लाख, करेक्ट, इंटू कितना होगा मेरा 20% प्लस 12,500, करेक्ट है। ये भी पॉपुलेशन निकल। अब वॉल्यूम फिर मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा, इफ GTI ढाई लाख, तो इस कंडीशन में क्या होगा मेरा, यहाँ पे तो मेरे को सिंपल वाला 2.5 लाख लगाता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, GTI माइनस 2.5 लाख इंटू 5%, करेक्ट है। तो ये मेरा सभी पॉपुलेशन करोगे। अब वो GTI इससे भी कम है तो मेरा क्या होगा, टैक्स कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने जैसी चीज़ क्या है कि ब्रैकेट, अब मैंने इतना सारा इफ दिया है तो कितने ब्रैकेट लगाने, तो सभी इफ का एक एक क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तो आप एक एक पढ़ के भी कर सकते हैं और एक्सेल आपको कलर कोड देता है। कलर कोड में क्या होता है, आप ब्रैकेट का कलर देखते जाइए। कलर लगाया, ये किसका हुआ, जिस 2.5 लाख वाले का हुआ, ये किसका हुआ 5 का, ये लास्ट, ये यहाँ पे टैक्स निकल के आ गया। यदि मैं इसको अब 2.5 लाख करूँगा तो दिस विल बी 0। इसको मैं 3 लाख करूँगा तो ये होगा 2,500। इसको 3.5 लाख करूँगा तो क्या होगा, ये 5,000, और 10 लाख करूँगा तो 1 लाख बार। तो यहाँ पे मेरा टैक्स निकल के आ गया। इसको आपको यदि देखना है तो एक बार देख लीजिए। सबको यदि स्क्रीनशॉट लेना है, कल जैसे कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे थे या नोट डाउन कर रहे थे, तो यदि सबको करना है तो कर सकते हैं इसको। सर आप आगे बढ़ सकते हैं सर। आप क्लियर है सबको? इसको कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। एवरीवन क्लियर? किसी को यदि इसका फोटो या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। यस सर। ठीक है, अब ये हो गया प्लेन। अब मेरे को इसको किसके साथ बनाना है, रिबेट के साथ बनाना है फॉर एग्जांपल। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिबेट के साथ में भी बना सकता हूँ, करेक्ट है। तो ये मेरा एक छोटा सा इनकम टैक्स कैलकुलेटर हो गया। अभी इसको मेरे को एक और ट्राई क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पेन ले सकता हूँ। मैं पेन ले लिया और पेन के बेस में क्या कर सकता हूँ,
पेन के बेस में मेरा यहाँ पे जो पर्सनल फॉर्म का अलग अलग में क्राइटेरिया हो सकता है, तो मैं मिड से वो मिड का फंक्शन अपन ने देखा है ऑलरेडी, मिड से वो पी और एफ निकाल सकता हूँ और उसके बेस पे मैं टैक्स रेट भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेन और डेट ऑफ बर्थ लेके और भी उसमें क्या बोलते क्या कर सकता हूँ, कॉम्प्लिकेशन कर सकता हूँ। तो इफ़ एंड और ये सबको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फार्मूलाज लगा सकते हैं। क्लियर है? इसको और जितना आपको आगे बढ़ाना है, इसमें आप सेस भी जोड़ सकते हैं, इसमें सरचार्ज भी लगा सकते हैं, बट आपको उतने ज़्यादा इफ़ लगाने पड़ेंगे। सर एक डाउट है, क्लियर है? सर एक हाँ। डाउट है स्वीटी का कि अपन हाँ। इफ के फॉर्मूले से कलर चेंज कर सकते हैं क्या? कलर चेंज, गुड डाउट है ये। मैं इसके बाद मैं वही बताना कर रहा था कि इफ़ का फॉर्मूला में क्या होता है, आपको रिजल्ट देना है पर्टिकुलर, तो रिजल्ट आप इधर उसमें लिख के दे सकते हो, आप फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको क्या फंक्शनली होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? सपोज इस केस में मैं चाहता हूँ यदि फेल है ना तो रेड हो जाए, और पास है तो ग्रीन हो जाए, और एग्जाम्पशन है तो येलो हो जाए। तो मैं ये तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, होम पे आता हूँ, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एज गुड एज क्या है, इफ़ के फॉर्मूला जैसा है। इसमें फ़र्क क्या है, यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या करता है वो, आपका फॉर्मेट चेंज करता है। और नॉर्मल इफ में क्या होता है, आपका फॉर्मेट चेंज नहीं करता, आपका क्या चेंज करता है, आपको रिजल्ट डिफाइन करना रहता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना पड़ेगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिस इज हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट दैट कंटेन और टेक्स्ट दैट कंटेन पास में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे फिर से मैं कंडीशन लगाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन EXM रहे तो यहाँ पे येलो आ जाए। क्या है, येलो आ जाए, करेक्ट। और फिर से यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, और टेक्स्ट पे फेल रहे तो रेड आ जाए। ये देखिए यहाँ पे, अभी ये फेल। अब मैं इसको जैसे ही पास करूँगा ना, पास करने के लिए मेरे को इसको 40 करना पड़ेगा, तो ये पास हो गया, ये पास हो गया, तो पास में ग्रीन हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल इफ में क्या होता है, आपको लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको कोई रिजल्ट देना रहता है, या क्या करना रहता है, आपको कुछ कैलकुलेशन करना रहता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे ही है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसका फॉर्मेट चेंज करो, वहाँ पे मल्टीपल कलर और बाकी बहुत सारी थिंग में कर सकता हूँ जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या काम आता है आपका, क्या काम आता है, यहाँ पे बहुत सारे आपका कंडीशन दिए हुए। हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट सेल रूल क्या बोलता है, यदि आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड इससे ज़्यादा है तो क्या करना है, लेस देन, यदि लेस देन है तो क्या करना है, बिटवीन। अभी एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, कल ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबको बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सेल में क्या क्या हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, उसमें कोई टेक्स्ट हो सकता है, उसमें कोई डेट हो सकती है, डेट इंक्लूड्स टाइम, ये तीन, या कोई फॉर्मूला हो सकता है, करेक्ट है। तो फॉर्मूला को छोड़ देते हैं अपन, उसमें या नंबर होगा, या डेट होगा, या टेक्स्ट होगा। तो जब भी मेरे को ये जो आपको दिख रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये जो चार है ना, ये किसके लिए काम आएंगे, हमेशा नंबर के लिए कहेंगे, क्योंकि नंबर भी हमेशा ग्रेटर देन हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं, और किसके लिए काम आएंगे, डेट के लिए भी काम आ सकते हैं। बट बेसिकली वो बने किसके लिए, यहाँ पे नंबर्स के लिए बने। तो जब भी आपका कोई नंबर्स में कैलकुलेशन करना है, जब अपन फिल्टर भी लगाते हैं तो वहाँ पे भी नंबर्स, तो ये पहले जो चार हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, वो किसके लिए है, नंबर्स के लिए है। तो दैट नंबर्स ग्रेटर देन डू दिस, लेस देन डू दिस, बिटवीन, यदि 40 से 60 है तो सेकेंड डिवीज़न, और 60 से 100 है फर्स्ट डिवीज़न, ये आप कर सकते हैं। पांचवा आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। तो अपन ने यहाँ पे यूज़ किया टेक्स्ट दैट कंटेन। वो क्या बोलता है, यदि कोई आपके सेल में कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता। टेक्स्ट यदि पेपर 1 लिखा है तो वो ग्रेटर भी नहीं हो सकता, लेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिंपल टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। तो उसमें क्या हो सकता है, टेक्स्ट दैट कंटेन। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, टेक्स्ट दैट कंटेन, यदि पास है, यदि उसमें PASS कंटेन करता है तो क्या दिखा देगा, वो ग्रीन दिखा देगा। FAIL कंटेन करता है तो क्या कर देगा, फेल दिखाएगा, उसको रेड कलर कर देगा। तो ये पांचवा टेक्स्ट दैट कंटेन है, ये टेक्स्ट के लिए यूज आता है।
उसके बाद आता है डेट अकरिंग, ये सिंपल डेट, यदि डेट इसके बीच में पड़ती है तो ये कलर, या फिर आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं उसको अलग अलग तरीके से। देन डुप्लीकेट वैल्यू, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेल्स रजिस्टर का कुछ ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कुछ उसमें डुप्लीकेट तो नहीं है। सेल बिल का नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए सेल रजिस्टर में, यदि बिल वाइज मेरे पास लिस्ट है तो। यदि वो डुप्लीकेट होता है तो प्रॉब्लम, तो मेरे को डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करना है, तो मैं कैसे करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल डुप्लीकेट वैल्यू, तो जो डुप्लीकेट होगा उसको क्या करना है, रेड करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक नंबर डुप्लीकेट होता है, तो कोई भी लिस्ट में से मेरे को क्या करना है, डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो मैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ये ग्रेटर। अभी पर्टिकुलर मेरे को यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हो गया, ये क्या हो गया आपका हाईलाइट सेल रूल हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या है, टॉप बॉटम। अभी मैं सपोज कुछ ऑडिट करने जा रहा हूँ सेल्स रजिस्टर का, मेरे को टॉप 10 आइटम चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को टॉप 10 आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल, अब यहाँ पे टॉप 10 है, यहाँ पे अब 10 ही है, तो इसके लिए टॉप 2, तो ये टॉप 2 को क्या करेगा, वो हाईलाइट कर देगा। ये दोनों सेम है, इसके लिए सेम आया है, करेक्ट है। टॉप बॉटम, यहाँ पे टॉप बॉटम आइटम लास्ट, इसमें लास्ट रो लेते हैं, तो ये सॉरी इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, क्लियर रूल्स। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम, तो यहाँ पे मैं टॉप 2 लेता हूँ, टॉप 1 लेता हूँ, सॉरी एक ही लेता हूँ, चलिए अपना एग्जांपल कम है, उसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन, ओके। तो टॉप आइटम यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। इसी के ऊपर मैं दोबारा लगाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, टॉप बॉटम, यहाँ पे मैं भी एक ही आइटम लेता हूँ जिसको रेड करता हूँ, तो ये हो गया मेरा टॉप आइटम। तो इससे क्या हो सकता है, मेरा सैम्पलिंग यदि करना है, यदि मेरे को कोई ऑडिट करना है, उसमें डेटा सैम्पलिंग करना है कि टॉप 10 आइटम करना है या बिलो 10 आइटम करना है, तो मैं उसका सैम्पलिंग कर सकता हूँ। और एक और चीज़ इसमें सैम्पलिंग के लिए क्या यूज़ आती है, सपोज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एवरेज जो है इसका, ये इसका एवरेज, तो हम तो सब जानते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सम का फॉर्मूला होता है, करेक्ट है। अभी मेरे को यहाँ पे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे एवरेज कितना है इसका, 6284। अभी मैं क्या काम करता हूँ, किसी एक को ना बहुत बड़ा कर देता हूँ, हाँ। अभी यहाँ पे इसका एवरेज कितना है, अभी सपोज सेल रजिस्टर का ऑडिट कर रहा हूँ मैं किसी का, वहाँ पे क्या कैसे कि जनरल उसका बिल साइज जो है ना 5000 से 10,000 के बीच में होता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से यदि कोई बिल, बड़ा बिल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 88,000, तो वहाँ पे कुछ फ्लैग आना चाहिए कि यार ये अचानक से बड़ा क्यों हो गया, तो वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, तो उसके लिए भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मुझे ये पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ रूल, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्शन। अभी देखिए, अब मैं इसको क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप बॉटम में जाऊँगा, अबव एवरेज को मैं क्या करूँगा, राइट। ये देखिए ये मेरे को रेड फ्लैग कर दिया कि इस बिल में कुछ इशू हो सकता है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि इसमें फिजिकली या फिर जो भी मैं मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये अचानक से इतना बढ़ गया। तो ये जो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप डाउन है, ये आप सैम्पलिंग, ऑडिट के सैम्पलिंग के लिए या फिर अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें मैं बिलो एवरेज भी ले सकता हूँ, तो बिलो एवरेज भी मेरे को दिखेगा कि यार ये 2000 बिलो एवरेज है, करेक्ट है। तो इस तरीके से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, वो भी वही करता है कि आपका कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसके बेस में लेकिन फॉर्मेट चेंज करता है। अब यहाँ पे डेटा बार आते हैं, अभी देखिए ये डेटा बार, इसको फिर से मैं 8000 करता हूँ। बहुत अच्छा फीचर्स है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको मैं 8000 करता हूँ और इसका मैं रूल को चेंज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर रूल। अब देखिए यहाँ पे डेटा बास भी है, ये डेटा बास, ये देखिए यहाँ पे ग्राफिकल दिखा रहा है, आपको दिख रहा है, क्लियर है, सबको दिख रहा है, विजिबल है स्क्रीन मेरा। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं। अब इसमें देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार, ये देखिए इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप MIS वगैरह देना चाहें तो जो बड़ा है वो आपको बड़ा दिखा देगा, करेक्ट है। तो हाईलाइट सेल रूल, टॉप डाउन, डेटा बास हो गया।
कलर स्केल से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैं कलर स्केल से डिफाइन करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केल, कलर के बेस पे हो, ठीक है। आइकॉन सेट, इसमें अलग अलग आइकॉन सेट है, तो मैं यहाँ पे इसको आइकॉन सेट पे करता हूँ, दिस आइकॉन सेट, यहाँ पे आप ले सकते, ये टावर वाला मोबाइल टावर, ये आप इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेटिंग करके यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी एक पार्ट ऑफ द लॉजिकल फंक्शन है, बट उसमें क्या होता है, नॉर्मल इफ में क्या होता है, हमको कोई रिजल्ट देना रहता है, रिजल्ट में इधर कैलकुलेशन होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसके बेस पे वो क्या करता है, फॉर्मेट चेंज करता है। फॉर्मेट इसमें प्री डिफाइंड है, और फॉर्मेट आप अपने तरीके से भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं न्यू रूल से। न्यू रूल से यहाँ पे अलग अलग आपका फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, करेक्ट है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर है, किसका डाउट था ये? स्वीटी का। हाँ, तो आई थिंक उसको ये क्लियर हो गया होगा। यस सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट। अब उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपन ने देखा, लॉजिकल फंक्शन देख लिया, क्लियर है सबको? इफ क्लियर है, इफ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इफ में पूरा कंप्लीट देख लिया अपन ने। इफ क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाते हैं। कई बार ऐसा केस आता है कि रिवर्स कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना कि कोई यार बोलता है कि यदि मैं 2000 रुपये टैक्स पटाऊंगा तो मेरा इनकम कितना होगा। यदि कोई ऐसा बोलता है, यदि कोई बोलता है यदि मैं 2000 रुपये टैक्स पटाना है तो मुझे कितना इनकम दिखाना है। सपोज यहाँ पे यदि मेरा टैक्स 2000 हो तो मेरा इनकम कितना होना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मेरे को पूरा रिवर्स इफ़ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक्सेल ने एक प्री डिफाइंड क्या दिया हुआ है, टूल दिया हुआ है, वो डेटा में आता है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस अब नाम से समझ आ रहा है, व्हाट इफ, यदि मेरा टेक्स्ट मेरे को 2000 पटाना है तो मेरा इनकम कितना होगा। तो ये उसके लिए यहाँ पे व्हाट इफ में आता है गोल सी। तो कहाँ पे जाना है, डेटा में जाना है, व्हाट इफ में जाना है और गोल सीक में जाना है। अब गोल सीक सेट वैल्यू, इसका वैल्यू मेरे को कितना करना है, सपोज करना है 12500 बाई चेंजिंग व्हाट, चेंज क्या करना है मेरे को, उसके बदले चेंज क्या होना चाहिए, बाई चेंजिंग GTI। ओके, मतलब टैक्स का वैल्यू मेरे को 12500 पटाना है तो उसका इनकम कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख, तो 12500 पटाने के लिए 5 लाख। मेरे को कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरे को 3000 रुपये टैक्स पटाना है, तो यहाँ पे सेट वैल्यू ऑफ टैक्स टू कितना 3000 बाई चेंजिंग व्हाट इनकम। तो इनकम मेरा यहाँ पे, तो 3000 के लिए उसका कितना इनकम होना चाहिए, 3,10,000, करेक्ट है। तो रिवर्स आपको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। तो गोल 6 क्या होता है, रिवर्स कैलकुलेशन बताता है। अपन ने इफ में क्या निकाला, इफ होगा तो ये, लेकिन उल्टा करके यदि देखना है तो अब उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट इफ यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको व्हाट इफ? कोई डाउट है व्हाट इफ में? तो शेयर करेंगे तो उसको तुरंत क्लियर कर लेंगे। सर अभी कोई डाउट नहीं आ रहा है सर, अभी क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये व्हाट इससे हो सकता है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं अपन। आज के डेट में क्या सीखा है अपन ने, इफ एंड और, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गोल सीक, ठीक है। अब अपन आते हैं पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल, अभी पाइवट टेबल बनाने के लिए एक सैंपल डाटा मेरे पास है, वो मैं सैंपल डाटा ले लेता हूँ। सर आपकी स्क्रीन में हो गया। हाँ, मैं सैंपल डाटा ओपन कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा हो रहा है। एक सैंपल डाटा अपन जल्दी से बनाते हैं पाइवट टेबल के लिए, करेक्ट है।
तो ये मेरा एक मैं परचेस रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर बना लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टी नेम, देन ये मेरा एक सैंपल डाटा बना रहा हूँ मैं, जिसमें अपन पाइप टेबल सीखेंगे, करेक्ट। तो ये सैंपल जल्दी से बना लेता हूँ। तो इनवॉइस नंबर रखता हूँ KS 2021। ये मैंने 100 फील्ड का एक इनवॉइस नंबर बना लिया, करेक्ट है। और उसका डेट अकाउंट से 20 पार्टी नेम हो गया। अब यहाँ पे टैक्सेबल आईडी डाल देता हूँ मैं। ये मेरा एक सैंपल डेटा ये एक सैंपल डेटा मेरा रेडी हो गया। ये क्या है मेरा, सपोज सेल्स रजिस्टर है, करेक्ट है। अभी इसका मेरे को पायवट टेबल बनाना है। तो पायवट टेबल सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। पायवट टेबल क्या होता है, कोई डेटा है जो मेरे पास टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल, उसको मेरे को यदि समराइज करना है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, पायवट टेबल। पायवट टेबल क्या होता है, कोई डेटा को समराइज करना है और समराइज करने के लिए पायवट टेबल होता है। सबसे पहले तो आपके तो पायवट टेबल का दो बेसिक कंडीशन है। आपका जो डेटा है टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए मतलब जैसे कि रो नंबर कॉलम नंबर ए, तो कॉलम नंबर ए में इनवॉइस नंबर, तो पूरा इनवॉइस नंबर इधर है। बी में इनवॉइस डेट है, तो आपका डेटा ना टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। आपका एक एक कॉलम का कुछ हेडिंग होना चाहिए और उसमें पूरा नाम। यदि आपका डबल हेडिंग होगा, मतलब इधर इनवॉइस नंबर और इस तरफ कुछ और, यदि ऐसा कुछ होता है तो वो आपका टेबुलर फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, यूनिफॉर्म। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, जितने भी आपके कॉलम्स है सबका हेडिंग डिफाइंड होना चाहिए। यदि उसका किसी का नाम डिफाइन नहीं है, हेडिंग डिफाइन नहीं है, तो उस पर पायवट टेबल नहीं लगेगा। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट हो गया कि टेबुलर होना चाहिए, देन सबका हेडिंग होना चाहिए। तो अपना ये जो डेटा दिख रहा है आपको, ये टेबुलर फॉर्म में है, सबका हेडिंग भी है।
अब इसको समराइज करना है, तो समराइज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, पायट टेबल लगाना पड़ता है। तो समराइज करने के लिए मैं पूरा डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पायट टेबल, देन ओके, ये आपका पायट टेबल बन गया। यहाँ अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पायट टेबल फील्ड्स दिख रही है। ये फील्ड्स क्या है, यहाँ पे आपके जो कॉलम की जो हेडिंग्स थी ना वो यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे 4 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, एक का नाम है फिल्टर है, एक का नाम है कॉलम है, एक का नाम रो है, एक का नाम वैल्यू। तो ये अपन पहले सबसे पहले रो को समझते हैं। रो में क्या चीज़ आएगा, रो में क्या चीज़ आएगा, आपको जिसके वाइज समरी करना है। पार्ट टेबल में सपोज मेरे को पार्टी वाइज समरी करना है। यहाँ पे पार्टी 3 पार्टियाँ मेरे एग्जाम्पल, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी। तो मेरे को जिसके वाइज समरी करना है वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, रो में जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे किसके वाइज समरी करना है, पार्टी के वाइज करना है। तो मैं पार्टी को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या ले आऊँगा, यहाँ पे ले आऊँगा। यहाँ देखिए मेरी 4 पार्टी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू में क्या होता है, मेरे को जिस चीज़ की समरी करनी है, तो मेरे को यहाँ पे क्या समरी करना है, मेरे को क्या सम करना है, उसका टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू है। तो ये ए बी सी डी का, ए का इतना सेल है, बी का इतना सेल है, सी का इतना सेल है, डी का इतना सेल है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, मेरा पार्ट टेबल से मैं समरी बना रही हूँ। तो पार्ट टेबल किस चीज़ के लिए काम आता है, समराइज करने के लिए। तो इस डेटा को यदि मेरे को पार्टी वाइज समरी करना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ले आऊँगा। तो इसके 4 बॉक्सेज हैं रो, जिसके वाइज मेरे को समराइज करना है ना वो मेरा कहाँ पे जाएगा, आइदर रो में जाएगा, आइदर मेरे को टैक्स रेट वाइज क्या करना है, समराइज करना है। तो मैं यहाँ पे टैक्स रेट वाइज दिया है। तो 0% वाला इतना सेल है, 5% वाला इतना, 12% वाला इतना, 18% वाला 28%। तो ये मेरा इसके वाइज सेल हो गया। अब यहाँ आता है कॉलम, मेरे को जो जिसके वाइज समरी करना है वो कॉलम में भी ले सकता हूँ। तो मैं सपोज यहाँ पे टैक्स रेट, तो इसका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। तो 0% वाला इतना है, 5 वाला इतना है, 12। अब मैं कॉम्बाइन भी यूज़ कर सकता हूँ। पार्टी वाइज मेरे को चाहिए रेट वाइज, तो मैंने यहाँ पे पार्टी ले लिया। तो एक का 0% इतना है, 5% इतना है, 12 इतना है, इतना 18 इतना, 28 इतना है, ये टोटल हो गया। अब देख रहे हैं समराइज करना है, मेरे को डेटा को जिस भी का हिसाब से समराइज करना है मैं उसके हिसाब से ले सकता हूँ। तो रो में क्या आएगा, सपोज यहाँ पे मेरे को टैक्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे टैक्स भी लिया। तो ए का टैक्सेबल वैल्यू 0% का टैक्सेबल वैल्यू इतना है, टैक्स तो कुछ होगा नहीं, 5% का इतना है, उसका टैक्स इतना है, करेक्ट है। तो किसी भी डेटा को मेरे को जब समराइज करना रहता है, क्या करना रहता है, समराइज करना रहता है, तो मैं पार्ट टेबल बनाता हूँ। उसमें मेरे पास कंपलसरी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला कि उसका पूरा डेटा टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए और ईच कॉलम जो है उसकी ईच की सबकी हेडिंग डिफाइंड होनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए यदि आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ, फिर से करते हैं एक छोटा सा, फिर से कहाँ गया मेरा डेटा, ये मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, पार्ट टेबल, ओके हो गया। ये मेरे पास यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पार्टी वाइज रेट वाइज करना है। तो जिसके वाइज करना है वो इधर कहाँ जाएगा, रो में जाएगा और कॉलम में जाएगा। तो पार्टी वाइज करना है तो सबसे मैंने पार्टी लिया, और पार्टी वाइज रेट वाइज करना है तो मैं वहाँ पे क्या ले आता हूँ, रेट भी ले आता हूँ। अब मेरे को वहाँ पे क्या चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, उसका टैक्सेबल वैल्यू का टोटल चाहिए, तो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स करना है तो टैक्स। तो ये देखिए इस फॉर्म में भी हो सकता है, ए का 0% इतना है, 12 इतना, 28 इतना है, 5 का इतना। अभी मैं उसको ऐसा घुमा देता हूँ, टैक्स रेट को ऊपर कर लिया तो 0% में ABC वाले इतने, 5 में ABCD वाले इतने, 12 में इतने, और ये राइट टोटल हो गया। अभी मेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए, पार्टी नेम इधर चाहिए, तो ये पार्टी नेम इधर आ गया। ये 3 कॉलम आपको समझ गए, जिसके वाइज करना है वो रो में जाएगा, आइदर कॉलम में जाएगा, जिसका समरी करना है वो किस में जाएगा, वैल्यू में जाएगा। अब एक ये लास्ट बचता है, यहाँ पे क्या बचता है, फिल्टर। तो फिल्टर में क्या होगा, फिल्टर नॉर्मल अपन फिल्टर यूज़ करते हैं। सपोज मेरे को सभी चीज़ का नहीं चाहिए, मेरे को ना पर्टिकुलर एक पार्टी का नहीं देखना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पार्टी नेम ले आऊँगा, ये सभी पार्टियों का। और यहाँ पे मेरा फिल्टर में मेरे को पर्टिकुलर सपोज फॉर एग्जांपल एक पार्टी का नहीं देखना है तो ये हटा दिया, तो यहाँ पे बाकी सब पार्टी उसका डिटेल आ गया। तो समझ आया होगा आपको। फिल्टर से क्या होगा, आप जो रिपोर्ट बना रहे हो उसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड या इंक्लूड करनी है तो फिल्टरिंग कर सकते हैं आप। यदि इसमें हमने क्या किया, ए पार्टी को छोड़ के बाकी का, यदि मेरे को खाली इसमें ए का देखना है तो मैं क्या करूँगा, खाली ए को सेलेक्ट करूँगा, तो ये ए का सो, और मेरे को सब का देखना है तो सब का हो गया।
तो फिल्टर में क्या हो गया, फिल्टरिंग करना है कि जिसका देखना है उसका देख सकते हैं, जिसका नहीं देखना है। आता है कॉलम और रो। कॉलम और रो में क्या है, जिसके वाइज मेरे को करना है समरी, फिर से समझना, जिसके वाइज समरी करना है वो मेरा आएगा कहाँ आएगा, रो में आएगा और कॉलम में आएगा। तो रो में हम क्या लिए यहाँ पे टेक्स्ट रेट लिए, पार्टी नेम भी, अच्छा यहाँ पे मेरे को पार्टी नेम दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा भी ले सकता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया 0512, और पार्टी नेम मेरे को यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं जहाँ चाहिए वहाँ पे अपना पार्टी नेम ले सकता हूँ। और ये आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या होता है ना, वैल्यूज़ में यहाँ पे सम हो रहा है, जहाँ पे सम होता है ना उसके साथ बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे सम, जहाँ पे भी आपको सम का फीचर एक्सेल देता है तो सम के साथ उसमें क्या देता है, मैक्सिमम देता है, मिनिमम देता है, मीन देता है, मोड देता है, एवरेज देता है। तो मुझे निकालना है इस पार्टिकुलर का काउंट देता है, तो पार्टी वाइज इनवॉइस नंबर निकालना कि कितने इनवॉइस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इनवॉइस नंबर को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और ये इनवॉइस नंबर का काउंट हो गया। तो ए पार्टी के कितने इनवॉइस है, 43 इनवॉइस, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है ये। अभी मेरे को चाहिए उसका जो एक इनवॉइस है, जो सबसे बड़ा इनवॉइस कौन सा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं यहाँ पे सम के बदले क्या करूँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे उसका लूँगा मैक्स। तो उसका एक इनवॉइस जो सबसे बड़ा कितने का है, 9906। अब हम यहाँ पे जाके फिल्टर लगा के देखते हैं, पार्टी ए। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा उसका कौन सा है, 9906। तो यहाँ पे मैक्सिमम है। टैक्स का भी मेरे को सम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा, वैल्यू फिल सेटिंग, और इसको मैं मैक्स कर दूँगा, तो ये उसका मैक्स होगा। करेक्ट है। तो वैल्यूज़ में आप क्या लिख सकते हैं, सम ले सकते हैं, जिसका समरी करना है। समरी क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, काउंट हो सकता है, एवरेज हो सकता है। मेरे को एवरेज साइज चाहिए, इसका मैक्सिमम नहीं, एवरेज कितना है, तो यहाँ पे मैं उसका एवरेज ले लिया, ये एवरेज हो गया, और ये फिर हो गया यहाँ पे, फिर भी मैंने एवरेज ले लिया। तो उसका एवरेज जो इनवॉइस है इतना है। करेक्ट। यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर डाल दूंगा तो इनवॉइस नंबर का काउंट भी कर देगा। तो ये क्या हो गया, 43 इनवॉइस बने हैं जिसकी एवरेज टैक्सेबल वैल्यू इतनी है और एवरेज टैक्स इतना है। बी का 25 इनवॉइस बने हैं और उसकी एवरेज टैक्सेबल वैल्यू इतनी है और इतना क्या है उसका टैक्स है। तो ये क्लियर हो गया आपको। जिसके वाइज करना है वो आइदर रो और कॉलम में, और जिस चीज़ की समरी करनी है, समरी मतलब सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, मीड, मोड, सब स्टैटिकल जितने भी फंक्शन है सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो कहाँ करना है आपको, इसको क्लिक करना है, वैल्यू फिल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको ये दिख जाता है आपका फॉर्मेट। करेक्ट। तो ये हो गया पार्ट टेबल। अभी यहाँ पे मेरे को जो भी फील्ड यहाँ पे रहेगी, जो भी डेटा रहेगा यहाँ पे, वही यहाँ पे मेरे को लिस्ट दिखा। अब मेरे को ना मंथ वाइज समरी बनानी है। तो यहाँ पे क्या है, इनवॉइस डेट है, मंथ नहीं, लेकिन डेट के अंदर ऑलरेडी क्या है, मंथ छुपा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये पार्टी नेम हटा दूंगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनवॉइस डेट। तो ये देखिए मंथ वाइज समरी होगी। अप्रैल में इतने इनवॉइस बने हैं, 15 इनवॉइस, उसका एवरेज वैल्यू कितना है, एवरेज टैक्स कितना है। मई में यहाँ पे मेरे को ईयर भी चाहिए, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे एनालाइज जो दिख रहा है आपको, ये एनालाइज दिख रहा है, एनालाइज में जाना है, ग्रुप सिलेक्शन में यहाँ पे देखिए डे, मंथ, ईयर। तो मैं यहाँ पे डे हटा के ईयर भी ले लेता हूँ, तो ये ईयर हो गया। तो 2020 का इतना होगा। मेरे को यहाँ पे क्वार्टर चाहिए, एनालाइज में जाऊँगा, ग्रुप सिलेक्शन, यहाँ पे मैं मंथ ना लेके ईयर करूँगा, तो ये ईयर हो गया। तो क्वार्टर 2 का इतना है, क्वार्टर 3 का इतना है, क्वार्टर 4 का इतना है। करेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे एवरेज नहीं चाहिए, अभी मेरे को पार्टी वाइज, क्वार्टर वाइज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पार्टी नेम को यहाँ ले लेता हूँ। तो ए पार्टी का इतना है, बी का इतना है, ये मेरा क्वार्टर वाइज, ये यहाँ पे भी मैं पार्टी ले सकता हूँ, या फिर मैं पार्टी को नीचे ले सकता हूँ। क्वार्टर 2 में ए बी सी डी का इतना है, 3 में इतना है और 4 में इतना है। करेक्ट है। क्लियर है सबको। ये जो क्वार्टर लेता है अप्रैल से जनवरी से दिसंबर वाला कैलेंडर ईयर से लेता है क्वार्टर। क्लियर है आपको सबको ये। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ग्रुप कर सकता हूँ। तो ये फीचर, ये डेट को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन में जाके मैं उसको अलग अलग तरीकों से कर सकता हूँ। क्लियर है। अभी तक कोई डाउट है किसी को इस पे? नहीं सर, किसी को नहीं है डाउट सर। आ रहा हो इस पे? किसी को डाउट नहीं है? नहीं सर, क्लियर है सर। ओके।
वॉइस मेरा क्लियर है? किसी को एक डाउट आ रहा है कि फैन का कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? सब वो अब क्लियर हो गया था, पहले आ रहा था फिर अब क्लियर हो गया था, अब सही आ रही है आवाज, Clear हो आवाज गया नहीं ना? आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो पायर्ट टेबल में ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं पायर्ट टेबल का। अभी मेरे को क्या बनाना है? डेटास एजिंग एनालिसिस बनाना है। क्या बनाना है? डेटास एजिंग एनालिसिस बनाना है। तो एजिंग मतलब क्या होता है? मेरे को निकालना है कि किसी का पेमेंट जो है ना कितने डील से आउटस्टैंडिंग दूर है, मतलब वो मोर देन 60 डेज वाले कितने हैं, मोर देन 90 डेज वाले कितने हैं, मोर देन 180 डेज वाले कितने हैं, वो एजिंग बनाना है। तो वो एजिंग भी मैं पायर्ट टेबल का यूज़ करके बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए डेटास का आउटस्टैंडिंग लिस्ट चाहिए। तो ये अज्यूम करता हूँ मैं डेटास का आउटस्टैंडिंग लिस्ट है, करेक्ट है। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए एजिंग बनाने के लिए? कितना डेज, नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग है वो, करेक्ट है। तो मेरे को कितना नंबर ऑफ डेज, इसका कट ऑफ डेट लेता हूँ, सपोज मैं दिसंबर कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर मानता हूँ, और इसका मेरा यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कट ऑफ डेट, ओके। और 31/12/2020 ये मैंने यहाँ पे लिखा कट ऑफ डेट। और अब मैं यहाँ पे बीच में निकालूंगा नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग, करेक्ट। दिस माइनस दिस करूँगा तो ये मेरा अभी ये डेट फॉर्मेट में आया, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? जनरल। ये 274 डेज से आउटस्टैंडिंग है। ऐसा करके मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका नीचे का कुछ उड़ा देता हूँ और कट ऑफ डेट लेता हूँ 30 सितंबर 30। तो ये मेरे पास क्या यहाँ पे आ गया? क्या आ गया यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग आ गया। अभी पायर्ट टेबल में आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग का कॉलम नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे होगा? एनालाइज में जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेज का क्या आ गया है? कॉलम आ गया। अब मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब मुझे एजिंग बनाना है। तो एजिंग कैसे? अब मेरे को ग्रुपिंग करना है कि 0 to 60 डेज में कितना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग, करेक्ट है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उसका टैक्सेबल वैल्यू ले लेता हूँ, करेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट कैसे बनाना है कि 0 to 60 डेज में मेरा कितना स्केल है, 60 से 90 मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है, 92। तो इसको मेरे को क्या करना है? ग्रुप करना है। क्या करना है? ग्रुप करना है। किस में करना है? बकेट में ग्रुप करना है। तो बकेट में ग्रुप करने के लिए फिर से ये ग्रुप सिलेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्शन में गया, यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग कौन सा है? 0, एंड कितना है? 180, एंड बाई 30 डेज। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पे आ गया 92, 119 दिन में इतना आउटस्टैंडिंग है, 120 से इतना, 150 से इतना, इतना। अभी इसका मेरे को ग्रुप सिलेक्शन चेंज करना है। तो मैं इसको करता हूँ 0 to 180 और इसको करता हूँ 90। तो 90 to 180 इतना है, 180 to ये इतना है, करेक्ट है। इसको मेरे को यदि सिक्सटी करता हूँ, 0 से स्टार्ट 180, तो 60 से 190 में इतना आउटस्टैंडिंग है, 120 से 180 में इतना आउटस्टैंडिंग है, 180 से ज़्यादा इतना आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे अभी देखिए कोई भी चीज़ तो 0 से 60 में है ही नहीं। इसको करने के लिए मैं यहाँ वो करता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो 0 से 59 में मेरा इतना है, 60 से 190 इतना है, 120 से 180 इतना है, 180 से अब इतना आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ क्या किया? मैं बकेट बना लिया। मेरे एक फील्ड जो थी, यहाँ पे जो मेरी फील्ड है नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग, उसको मैंने क्या कर दिया? बकेट बना लिया। क्या कर दिया? ग्रुप कर लिया। वो कहाँ से जाके किया? एनालाइज में जाके, एक बार फिर से रिपीट करना है। एनालाइज में जा, यहाँ नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिया है, एनालाइज में जाके इस पर क्लिक करके ग्रुप सिलेक्शन, यहाँ पे मैं 0 to 360 कर सक रहा हूँ। ये हो गया। 0 to 59 में इतना है, 60 इतना, उससे ऊपर है ही नहीं, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। डेट को ग्रुप कर सकते हैं, कोई दूसरी फील्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 180 रखता हूँ,
ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गया। अभी मैं एजिंग एनालिसिस बना रहा हूँ, तो एजिंग एनालिसिस बनाते हुए यहाँ तो मैंने टैक्सेबल वैल्यू लिया है, बट एजिंग तो टैक्सेबल पे नहीं होता है ना, उस पर तो इनवॉइस वैल्यू लेना पड़ेगा। इनवॉइस वैल्यू में क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट दोनों इंक्लूड होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे तो टैक्स इनवॉइस वैल्यू है ही नहीं, तो मेरे पास एक क्या तरीका है, मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करूँ, उसमें दोनों को ऐड करके इनवॉइस वैल्यू लूँ। सॉरी, 1 सेकेंड। तो एक तरीका क्या है मेरा, इनवॉइस वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूँ और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे पार्ट टेबल मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली ये फील्ड कैलकुलेट करने दो, फील्ड आइटम। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे एक नई फील्ड ऑटोमेटिक बना सकता हूँ, उसका नाम क्या होगा, इनवॉइस वैल्यू। उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस डेटा में चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट पार्ट टेबल में ही एक फील्ड क्रिएट करेगा। तो दो ऑप्शन, एक तो डायरेक्ट मैं डेटा में जाके वहाँ पे इनवॉइस वैल्यू नाम की कॉलम बना दूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँ, वो आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। एक ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ और इसको लिखूँ इनवॉइस वैल्यू, करेक्ट, और इसको टोटल किया। ये अजीब क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट है डेट, इसको मेरे को करना पड़ेगा जनरल। ये इनवॉइस वैल्यू आया, अब इसको मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश। अभी यहाँ पे मेरे को इनवॉइस वैल्यू दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको रिफ्रेश करूँगा, अब मेरे को यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू दिख गया, तो टैक्सेबल के बदले में क्या ले आऊँगा, यहाँ पे इनवॉइस भी ले आऊँगा और टैक्स भी ले आऊँगा। तो आपको क्या पता है, जो फील्ड वहाँ पे होगी वही यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। तो एक तरीका हो गया इनवॉइस वैल्यू लाने का। अब दूसरा तरीका, मेरे को वहाँ पे जाके उस अपने डेटा में छेड़छाड़ नहीं करना है मेरे को, तो मैं यहाँ से इनवॉइस वैल्यू को हटा देता हूँ। अब देन सेकेंड मेथड, फिर से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू फिर से जाएगा। अब मेरे को वहाँ पे डेटा में चेंज नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, यहीं पे चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, एनालाइज में जाऊँगा, फील्ड आइटम में जाऊँगा, कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊँगा और इसका नाम दूंगा मैं इनवॉइस वैल्यू। और इसका क्या फॉर्मूला होगा, टैक्सेबल वैल्यू, इसको डबल क्लिक किया, प्लस टैक्स को डबल क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू आ गई। यहाँ पे मेरे डेटा में इनवॉइस वैल्यू का कॉलम भी नहीं है, तो भी यहाँ पे मेरे पास इनवॉइस वैल्यू आ गई। इसका आप देखेंगे तो टोटल भी यहाँ पे टैली हो रहा है। तो जो फील्ड मेरी डेटा में है लेकिन पायलट में चाहिए और पायलट में नहीं मिल पा रहा है, तो मैं उसको कैसे ले सकता हूँ, इनवॉइस वैल्यू से ले सकता हूँ। क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसको इसके ऊपर, तो कोई पूछ सकता है यदि किसी को कोई डाउट है तो। नो, कोई डाउट नहीं है सर। क्लियर है सबको, ठीक है। यस सर। अभी पायलट टेबल हो गया, पायलट चार्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो पायलट चार्ट बनाने के लिए ये डेटा को सिंपल सेलेक्ट करना है, एनालाइज में जाना है, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है और इसका मैंने अलग अलग चार्ट बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे खाली इनवॉइस वैल्यू रखता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पायलट चार्ट बना सकता हूँ और इसका मैं पाई चार्ट रखता हूँ। तो ये मेरा चार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 0 to 59 वाला इतना है, ये इतना है और ये कितना है, इतना है। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन, कलर, लेआउट सब कुछ अवेलेबल है, जो आपको बेटर लगे आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पे लेआउट है, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे डेटा लेबल चाहिए मेरे को, तो बेस्ट फिट कर दूंगा। तो यहाँ पे डेटा लेबल भी दिखा दे कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है। तो ये इस तरीके से मैं भी उसका चार्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको पायलट टेबल।
Yes, पायर टेबल क्या काम करता है? किसी डेटा को समराइज करता है, और समराइज करने के लिए हमारे पास फिर यहाँ पे रो लेवल में क्या आएगा? अच्छा, ये तो भी चार्ट का दिखा रहा है। रो में क्या आएगा? जिसके वाइज सॉर्ट करना है, वैल्यू में जिसको समराइज करना है, कॉलम में भी जिसके वाइज, और फिल्टर। तो ये अपना पायर टेबल क्लियर हो, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक नया टॉपिक देखते हैं अपन पायर टेबल के बाद। ये पायर टेबल डेटा हो गया, पायर टेबल हो गया डेटा वैल्यूएशन। हाँ, हम अभी यहाँ पे अपन डुप्लीकेट वाला देखे थे। ये इनवॉइस नंबर है, सपोज ये इनवॉइस नंबर है, इसमें से मेरे को डुप्लीकेट हटाना है। डुप्लीकेट हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? सपोज इसको मैं एक नया शीट लूँगा। ये मेरे पास सपोज कोई डेटा है, उसमें डुप्लीकेट्स मुझे हटाना है। तो एक अपन ने देखा था, क्या देखा था वहाँ पे? डुप्लीकेट्स हटाने का। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स में डुप्लीकेट्स को डायरेक्ट हटा देता है, तो ये डुप्लीकेट हट जाती है। करेक्ट है, तो ये डुप्लीकेट। अब उसके बाद आते हैं अपन कंसोलिडेट, डेटा को कंसोलिडेट करना है। तो अब डेटा कंसोलिडेट, जैसे नाम से समझ आ रहा है, हमारे पास डेटा है अलग अलग, उसको कंसोलिडेट करना है। उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जीएसटी अपन रिटर्न फाइल करते हैं तो एवरी मंथ का डेटा आता है कि मंथ वाइज डेटा है, उसको मेरे को क्वार्टर वाइज कन्वर्ट करना है। एक मंथ का डेटा है, उसको 3 महीने को क्या करना है? क्लब करके क्वार्टरली डेटा चाहिए। करेक्ट है, तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज होगा? कंसोलेट फंक्शन यूज होगा। तो कंसोलेट फंक्शन कैसे यूज होता है? तो उसके लिए मैं सिंपल 3 महीने का डेटा बना लेता हूँ। 1 2, ये मेरा सपोज ये है अप्रैल का डेटा हो गया, ये मेरा मई का डेटा है, और ये मेरा जून का डेटा है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल बना देता हूँ टैक्स रेट, और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, और यहाँ पे टैक्स। तो ये यहाँ पे 0 5 12 18 28, और यहाँ पे रख देता हूँ सिंपल डेटा बना रहा हूँ मैं। टैक्स में कैलकुलेट करता हूँ, दिस इंटू दिस परसेंटेज करता हूँ। ठीक है, ये मेरा अप्रैल का डेटा है। अब मई का डेटा, ये सपोज ये मेरा मई का डेटा है फॉर एग्जांपल। इसका वैल्यू चेंज करना है, इसमें 0 ऐड कर देता हूँ। ये मेरा मई का डेटा है। ओके, जून का डेटा, ये मेरा जून का डेटा है फॉर एग्जांपल। जून के डेटा में एक और 0 ऐड करते हैं। ये मेरा डेटा है। अब मुझे क्या करना है? क्वार्टरली डेटा बना। तो ये मेरा हो गया QTR1। ये क्वार्टर मंथ का मेरे को डेटा यहाँ पे चाहिए। ये मेरे पास क्या है? मंथली डेटा अवेलेबल है, अप्रैल का, मई का, जून का। मेरे को यहाँ क्वार्टर का चाहिए। तो मैं बेसिक क्या करता हूँ, अभी तक कैसा करता है, यदि मैं कंसोलिडेट सपोज मेरे को नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा? ये फॉर्मेट खोलूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा, और ये एक बेसिक नॉर्मल मैनुअल वर्किंग है। उसके बाद फिर आपको एडवांटेज बताता हूँ उसका। फिर मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे जाऊँगा, ये अप्रैल को लूँगा 0% प्लस, फिर मई में जाऊँगा
प्लस फिर जून में जाऊंगा, ओके करूंगा तो ये अप्रैल मई जून तीनों का टोटल हो गया, फिर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज अ मैनुअल वे ऑफ डूइंग कंसोलिडेशन, जो कि हम लोग बिना कोई फॉर्मूला कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप इसमें आप एक चीज़ देखिए, आपका सभी डेटा में सभी रो लाइन्स है, मतलब 0, 5, 12, 18, 28। यदि सपोज आपके पास तीनों में 5 ऊपर है 12 अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, और अलग अलग ढूंढने में दिक्कत जाएगा आपको। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड शीट में यहाँ पे ना 18 ऊपर है, ये मैं इसको, तो यहाँ पे यदि ऐसा सीक्वेंस बराबर नहीं तो मेरा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, करेक्ट। यदि सीक्वेंस बराबर है तो मेरे रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज क्या होगा, या फिर पर्टिकुलर कोई शीट में 18% है नहीं तो भी मेरा रिजल्ट गलत हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट गलत हो जाएगा, करेक्ट है। तो मैनुअल वर्किंग में यदि आपका डेटा एकदम यूनिफॉर्म है और एकदम लाइन से है तो ठीक है, लेकिन यदि आपका डेटा यूनिफॉर्म नहीं है और लाइन से नहीं है तो आपको मैनुअल वर्किंग काम नहीं है। उसके इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस फीचर यूज़ करना पड़ेगा, और वो एडवांस फीचर क्या है, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है ना, यदि आपका डेटा यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब 5, 12, 18, 28 लाइन से नहीं, किसी में 5 आगे है, किसी में ये आगे है, तो भी वो क्या करता है, इसको मैं अल्टीएस करता हूँ, यदि यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा, और यहाँ पे तो एक 18% का रेट ही नहीं है, यदि आपका डेटा यूनिफॉर्म नहीं है तो भी आपको कंसोलिडेट बराबर करता है, वो आइडेंटिफाई करता है 5 वाला टैक्सेबल अमाउंट क्या है, उसका टोटल करके देता है। तो इसका बेनिफिट आप समझ रहे हैं। नॉर्मल में क्या होता है, आपको देख देख के करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म है तो 0 के साथ 0 को टोटल करना है। कंसोलिडेट में क्या होगा, आपको वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे कंसोलिडेट लगाना है, तो मैं सबसे पहले क्या जाऊँगा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे आएगा कंसोलिडेट। अभी मेरे को क्या करना है, सम करना है, किसका किसका करना है, तो मुझे बताना है, यहाँ पे ब्राउज करना है। तो कंसोलिडेट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे आके अप्रैल, तो मेरा ये अप्रैल का डेटा को कंसोलिडेट करना है। इसको मैं क्या किया, ऐड। देन मेरे को क्या करना है, फिर से मई चाहिए तो ये मई को मैंने क्लिक किया तो ये मई भी ऐड। देन मेरे को क्या चाहिए, जून, इसको भी क्या किया मैंने, ऐड। अब ये पूछ रहा है लेबल, लेबल मेरा टॉप रो क्या है, लेबल है, मतलब उसमें हेडिंग है, और लेफ्ट कॉलम में भी क्या है, हेडिंग है। टॉप रो में क्या था मेरा, टैक्सेबल वैल्यू टैक्स, और इसमें क्या था, टैक्स रेट, ओके। तो ये देखिए, ये मेरा करेक्ट रिजल्ट यहाँ से बता देता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वो 5, अब देखेंगे 0 का टोटल करके देखते हैं अपन। यहाँ पे 1000 हुआ, यहाँ पे 10,000 हुआ, सॉरी 10 लाख 10 लाख हुआ, 1 लाख हुआ, यहाँ 10,000 तो 1,10,000 हुआ, और यहाँ पे कितना है, अप्रैल, हाँ तो 1,11,000 होना चाहिए। तो ये देखिए 1,11,000, भले अलग अलग रो में है तो भी वो क्या हुआ, करेक्ट रिजल्ट दिया। तो इसका ब्यूटी आपको समझ आएगा, क्या ब्यूटी है इसका, आपका भले वो सीक्वेंस में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है, तो भी वो आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करके देता है आपका डेटा। अब इसमें ये तो क्या हुआ है कि मेरा फिक्स वैल्यू आया। अब मैं इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फिर से मैं कंसोलिडेट आता हूँ, तो डेटा में गया, मैं कंसोलिडेट में गया, अभी यहाँ पे क्रिएट लिंक सोर्स, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे सपोज कुछ चेंज भी होगा ना, अब इसको मैं 1 लाख को 0 कर दूंगा, तो यहाँ देखिए मेरा ये ऑटोमेटिक वैल्यू भी चेंज होता है। तो ये क्या हो गया, लिंक बन गया, यहाँ से क्या आ गया, लिंक आ गया। और इसको मैं देखना भी चाहूँ तो ये अलग अलग दिख रहा है, ये 3 अलग अलग शीट का यहाँ पे दिखता है, करेक्ट है। डे 1 शीट फाइल का नाम लेता है, ये डे 1 जो है फाइल का नाम है, करेक्ट। तो कंसोलिडेट से क्या कर सकते हैं आप, किसी डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व की, जहाँ पे भी सम का फीचर आता है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट, मेरे को इसका सम नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल सबका ना एवरेज निकाल, जहाँ पे भी सम है वहाँ पे सम के साथ में क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, एवरेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को सम नहीं करना है, यहाँ पे उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो ये मेरा एवरेज आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, इसको थोड़ा सा
फिर से बना लेता हूँ ताकि जो मैं शीट शेयर करूँगा तो थोड़ी साफ सुथरी शीट हो। सम ब्राउज ऐड, इसको ऐड करना है, देन मई को ऐड करना है, मई ऐड, जून ऐड, टॉप रो ऐड कॉलम क्रिएट लिंक। ये मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, अभी एक और फीचर, ग्रुप सब टोटल। अभी सब टोटल क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी पायट टेबल से समराइज़ किया डेटा को। कैसे किया था, पायट टेबल से समराइज़ किया। मेरे को उसको अदर देन पायट टेबल दूसरे तरीके से, मतलब उसी शीट में समराइज़ करना है। सपोज यहाँ पे मेरा ये, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है पार्टी वाइज, तो इसको मेरे को यहाँ पे सब टोटल चाहिए पार्टी वाइज। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है, सब टोटल में जाना है, किसका टोटल करना है मेरे को, टैक्सेबल वैल्यू का, टैक्स का। एट ईच चेंज इन, क्या चेंज है, पार्टी नेम। जहाँ पे भी पार्टी नेम चेंज होता है उसका टैक्सेबल और टैक्स का सम करें। तो ये देखिए, ये पार्टी नेम के सब टोटल आ जाता है। यहाँ पे आपको सब टोटल मिल जाएगा। ए का आया, ए का आपको नीचे देखते हैं, ए का टोटल हो गया, देन बी का टोटल नीचे मिलेगा। इसको मेरे को ये सेकेंड लेवल में ले जाऊँगा तो ये ए बी सी डी का। पायट टेबल में क्या होता है, अलग शीट में जाता है, और सब टोटल से क्या होता है, दूसरी शीट में आ जाता है। ये 3, 2 और ये फर्स्ट में आपका ग्रैंड टोटल है। तो ये क्या हो गया, सब टोटल हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो ये सब टोटल हो। उसके बाद एक और अपन एक बहुत अच्छा सा फीचर देखते हैं, लास्ट अपना टॉपिक रहेगा आज के लिए, और उसमें हम माइक्रोज का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज ना बहुत बेस्ट, और अपना काम जो है ना बहुत आसान। अपन जानते हैं जैसे एक्सेल में बहुत सारा काम रिपीटेटिव होता है, करेक्ट है। तो वो काम को, रिपीटेटिव नेचर के काम को क्या है, जैसे एक नॉर्मल अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो टास्क को फिर वो रिपीट करता है, करेक्ट। एक काम आपको यदि एक 10 स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 1 2 3 4 5 6, फिर आपका रिजल्ट आता है, तो वो आप स्टेप को आप एक्सेल में रिकॉर्ड कर लीजिए, देन उसको आप दोबारा प्ले करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होता है, वो दोबारा देगा, करेक्ट है। तो उसके लिए क्या होता है, माइक्रोज होता है। तो माइक्रोज कैसे करते हैं, ये डेवलपर टैब है, यहाँ ये रिकॉर्ड माइक्रो से होता है। उसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। कल जैसे मैंने आपको बताया था रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, फिर से बताता हूँ। रिलेटिव रेफरेंस मीन्स आपका जो रेफरेंस है वो आपके कर्सर पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है, और एब्सोल्यूट रेफरेंस मीन्स एब्सोल्यूट कि D6 मतलब D6 में ही काम करना है, और रिलेटिव रेफरेंस रहेगा तो जहाँ पे मेरा कर्सर रहेगा वहाँ पे काम करेगा। तो एक एब्सोल्यूट रेफरेंस का अपन एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल बेसिक सा मैं माइक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड माइक्रो किया, इसका नाम दिया माइक्रो 1, और इसका कंट्रोल में दे दिया कंट्रोल Q, ठीक है, ओके किया। अभी मेरा यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग चालू, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग चालू। अब मैं यहाँ पे जाके इसको कलर कर देता हूँ, दैट्स इट, और डेवलपर में जाके स्टॉप कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इवेंट क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया है। इसको यदि आपको देखना है तो ये विजुअल बेसिक्स में जाएंगे, सॉरी माइक्रोज में जाएंगे, इसका स्टेप इन्फो देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये इसका कोडिंग पूरा लिखा गया। तो आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट करते जाइए, सिस्टम आपके लिए कोडिंग करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव रेफरेंस का बटन ऑन नहीं किया था, अब मैं इसका कलर को हटा देता हूँ। अब मैं इसका कलर हटा देता हूँ, डेवलप, मैंने इसका शॉर्टकट क्या दिया था, कंट्रोल Q, देखिए फिर से क्या हो गया, येलो हो गया। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, हमेशा क्या होगा, D7 क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। मैं कोई दूसरी शीट में जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल Q दबाता हूँ तो देखिए येलो हो रहा है, ठीक है। अभी रिलेटिव रेफरेंस के साथ करेंगे, तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होगा, जहाँ मैं एक और नया माइक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, माइक्रो रिकॉर्ड माइक्रो 2, इसका शॉर्टकट देते हैं कंट्रोल B, करेक्ट। पहले मैं रिकॉर्ड रिलेटिव रेफरेंस को क्या कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। ये रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करने से क्या होगा, जिस जहाँ पे भी मेरा कर्सर रहेगा वहाँ पे काम करेगा। रिलेटिव रेफरेंस ऑन है मेरा। अब मैं यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड करता हूँ और इसका नाम देता हूँ कंट्रोल B माइक्रो 2, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ।
इसका कैसा डिज़ाइन बनेगा, ये डिज़ाइन बना, डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन बना, ये डिज़ाइन बना। अब ये मेरा हो गया। अब मैं इसको जाकर डेवलपर टैब में स्टॉप कर दूँ। ये मेरा माइक्रो। अब मेरे को सपोज यही पैटर्न कहीं और बनानी है, सपोज मुझे यहाँ बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल भी दबाऊँगा, तो ये देखिए यहाँ पे पैटर्न मेरा कर्सन लोकेशन के बेस पे वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब मेरे को इसका स्टेप इन्फो देखना है, तो माइक्रोज में जाके ये स्टेप इन्फो, तो ये उसने रिकॉर्ड कर दिया। तो माइक्रोज क्या होता है कि आपको कोई टास्क है उसको रिपीटेटिवली नेचर में करना है। सपोज एक आपको फॉर्मेटिंग आपको रेगुलर करनी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ना अपन एक एग्जांपल लेते हैं माइक्रोस का, एक छोटा सा बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो बेस्ट कैसे यूज़ होता है। ये एक मैं नया बनाता हूँ, ये है मेरा यूज़र फॉर्म, ठीक है। और ये यूज़र फॉर्म का मेरा ये है मास्टर डेटा, ये है यूज़र मास्टर डाटा, ये मेरा मास्टर डाटा है, ठीक है। यूज़र फॉर्म में मेरे को क्या लेना है, नेम लेना है, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नेम लिया, और क्या लूँ, सिटी लिया, और मोबाइल नंबर लिया, यहाँ पे ले लिया मैं, स्टेट लेता हूँ, करेक्ट। ये मेरा यूज़र फॉर्म है। ये मैं छोटा सा इसको फॉर्मेटिंग करके यूज़र फॉर्म बनाता हूँ आप लोगों के लिए। इसको मैंने कर दिया कलर, इसको कर दिया मैंने थोड़ा बड़ा, इसको यहाँ सेंटर में। ये मेरा यूज़र फॉर्म बनाया मैंने, ठीक है। इसका कलर कर दिया मैंने, ये मेरा यूज़र फॉर्म है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंसर्ट कर देता हूँ शेप। ये एक शेप मैंने यहाँ पे जाके एक शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट बॉक्स से क्या किया, नाम लिख दिया, नाम लिखा सेव, करेक्ट। ये सेव लिख दिया। अभी ये यूज़र फॉर्म और इसका एक मास्टर डेटा मैंने यहाँ पे बना लिया, ये मास्टर डेटा है। ये मेरा मास्टर। तो अभी क्या है, मेरा यूज़र यहाँ पे कुछ डेटा इंटर करेंगे, और मैं जैसे ही सेव बटन दबाऊंगा तो सब मेरा यहाँ पे आके जाना। तो मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे कपिल लिया, यहाँ पे सीजी लिया, और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिया। सपोज मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं सेव बटन दबाऊँ, ये डेटा मेरा यहाँ पे क्या हो जाए, आके ऐड हो जाए, करेक्ट। वैसे ही हर बार, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटा सा माइक्रो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो माइक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे डेवलपर टैब में जाता हूँ, रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ करता हूँ, रिलेटिव रेफरेंस। अभी मेरे को क्या करना है, रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ रखना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो और इसका माइक्रो 3, ठीक है, ओके। मेरा माइक्रो रिकॉर्डिंग चालू है। अब मेरे को क्या करना है, जब भी यूज़र ये डेटा को लिखेगा, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी किया, इस शीट में आया, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपीड सीट कर दूँगा। क्या करूँगा, इंसर्ट कॉपीड सीट कर दूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इंसर्ट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कॉपीड सीट किया, यहाँ पे जो भी यदि कुछ लिखा हो तो नीचे आ जाएगा, ओके। देन मैं यहाँ पे वापस गया, इसको डिलीट किया और कर्सर को यहाँ पे लाके छोड़ा, स्टॉप। ये मेरा माइक्रो रिकॉर्डिंग हो गया। अब ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है, इसको मुझे सेव करना है। तो इस बटन पे जाके राइट क्लिक करना है, असाइन माइक्रो 3, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से अपना नाम लिखता हूँ,
कॉपी और इसको कर दूँ। यहाँ पे लिखा, मैंने सेव बटन दबाया, यहाँ पे देखिए ये आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया करेक्ट। फिर यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया, बी लिखा, बी लिखा, बी लिखा। बहुत सिंपल से मेरा माइक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। तो क्या किया मैंने, सिंपल एवरी टाइम मेरे को कॉपी पेस्ट करना है तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल किया और उसको पेस्ट कर दिया और माइक्रो यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर दिया। तो क्या हो गया, मेरा माइक्रो रिकॉर्ड हो गया और एवरी टाइम वो रिपीटेटिव एक्टिविटी यदि मेरे को करना है तो ये एक छोटा सा क्या हो गया, कैलकुलेटर बन गया। यदि आपको फिर से देखना है तो फिर से कर सकते हैं, बाकी ये क्लियर है एकदम छोटा। तो आप माइक्रोस का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारा अपना रिपीटेटिव काम को बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ऑलवेज माइक्रोस एक वास्ट चीज़ है और इसको और लर्न किया जा सकता है अपने काम को ईजी करने के लिए। तो आज के लिए मैं चाहूँगा कि सेशन कोई यदि डाउट है तो डाउट अपन ले सकते हैं और नहीं तो फिर नहीं क्लोज सर। कर सकते हैं। हाँ तो तो अभी आज तो के कोई लिए डाउट नहीं। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को क्लोज करते हैं। मैं हैंड ओवर करता हूँ Yes. अलौकिक को। यस थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम गिवन टू द सिकासा। थैंक यू। Manmohan will join us soon. He is trying to connect. And all other Saurabh, Devashish have also joined us. Manmohan has also joined us. Siddharth. Thank you so Thank much. you very much, sir. Thank This you. has been a great learning experience for all of us. Towards the end of our two-day webinar, I would like to invite Mr. Siddharth Hirani, Treasurer, Bilaspur Branch, to propose vote of thanks. Thank you so much. Am I audible? Yes, Yes, you are sir. right. Thank you so much, Kapil sir, for sharing your knowledge on Excel with us. I am sure that students have learned a lot in these 2 days, and they definitely use this trick in their office to make their work easier. And I would also like to thank Sikasa Raipur and Bhilai branch for joining us and making this webinar success. And I would also like to thank entire team of Sikasa Bilaspur for making this possible. Thank you. Stay safe. Over to you, Priya. Thank you. Take care. ये जो शीट है ये मैं आज भेज दूंगा, इसको भी आप डाल दीजिएगा उसमें, तो ये शेयर हो जाएगी सबको। Thank you, sir.